Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This helps us understand these companies in a much better way. We get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and most importantly, the aspirations of the promoters. And this helps all our investors to take a very conscious investment call when they invest in such companies. And today we go on to talk about another interesting company which is going to go public very soon. The company's name is Manilam Industries India Limited, and I have the privilege of having Mr. Manoj Kumar Agarwal, who's the managing director of the company. Manojji, welcome to the show. Thank you for the time. I think in this small interview, Manojji, we'll be able to understand your company's operations in a much better way. So, thank you very much for the time. Thank you, sir. Thank you, Avinash ji. तो मनोज जी पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है जो बेसिक है बेसिकली हमको बताइए सर हमारा कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है बिजनेस मॉडल क्या है और ये जर्नी हमने कैसे शुरू की क्या ये फादर के टाइम की कंपनी थी जो आपने आगे चलाई या आपका फर्स्ट जनरेशन आप ही ने कंपनी शुरुआत की सर इसके बारे में कुछ बताइए We started Manilam Industries India Limited in 2018 with a focused vision to build a quality decorative laminate manufacturing company. It's a first generation company. We started it and we began with 1 million seat per annum and gradually scaled operations through disciplined capital allocation, strong dealer relationship एंड कंसिस्टेंट हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन के बाद में आज के दिन वी एक्सपेंडेड आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 50 लाख सीट विच इज़ 5 मिलियन सीट्स पर एनम एंड डाइवर्सिफाइड इनटू different products like door skins, fluted panels, decorative panels, exterior laminates, and we have just started industrial laminates also. ठीक है Our bus- our business model is primarily B2B. We manufacture centrally at Bareilly, Uttar Pradesh, and distribute our products across India through a strong distributor network. Brand visibility is supported through experience centers and architect engagements, while revenue flows through channel partners, sir. ठीक है आई थिंक मनोज जी बहुत अच्छा आपने जानकारी दी सर मनोज जी बताइए कि सर हमारे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स होंगे पैन इंडिया आप प्रोडक्ट बेचते हो यू सेल योर प्रोडक्ट्स पैन इंडिया सो हाउ मेनी डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स डू वी हैव टू सपोर्ट दिस B2B बिजनेस We have 50 plus distributors as on date and around 350 plus dealers network across India. ओके एंड सर वन मोर थिंग आर आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल पैन इंडिया या बेसिकली स्पेसिफिक स्टेट्स में ही ज्यादा बिकते हैं सर इसके बारे में नहीं सर, बोलिए पैन पैन इंडिया है। लाइक हम लोगों की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है देन साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, एंड वी हैव टच्ड अपॉन वेस्टर्न इंडिया आल्सो। ओके मनोज जी थोड़ा सा आपके लैमिनेट ब्रांड्स के बारे में बताइए आई थिंक आई वाज रीडिंग योर प्रोस्पेक्टस यू हैव ब्रांडेड ऑल योर लैमिनेट प्रोडक्ट्स सेपरेटली सर ब्रांड्स के बारे में बताइए कौन कौन से ब्रांड्स है और सर दूसरी बात बताइए कि कितने एसक्यूज हमारे होंगे आपने बोला बहुत बड़ी कैपेसिटी आपकी तो मोटा मोटी सर कितने एसक्यूज हम लैमिनेट्स के बनाते हैं हमारा ब्रांड एज यू सेड कि हमारा ब्रांड सिंगल ब्रांड है, मनी लैम ब्रांड है। उसके अंदर में वी कीप डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग्स इन कलेक्शंस एंड हम लोगों के 1000+ SKUs है, मतलब 1000+ डिज़ाइंस हैं। एंड हमारी जो कलेक्शंस हैं which varies from 1 mm which is premium collection, then 0.8 Vogue collection, and Dwar collection which we keep door skins also, ओके fluted surfaces, and we just started industrial laminates also. ओके ठीक है मनोज जी नाउ टेल मी वन थिंग दैट टिपिकली हमारा एक्टिव कस्टमर बेस कितना होगा अभी आप काफी साल से इस इंडस्ट्री में हो सर मोटा मोटी हमारे कितने एक्टिव कस्टमर होंगे और दूसरी बात बताइए सर ये जो प्रोडक्ट है इसमें सर हाउ डज प्राइसिंग वर्क मान के चलिए कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपको एग्जिस्टिंग वॉल्यूम देते हैं नया कस्टमर आता है सर प्राइसिंग कैसे फिक्स होता है लाइक इज इट चेंज एवरी 3 मंथ 6 मंथ और इज इट अ yearly kind of price which is given to all the distributors pan India No, we normally keep a dynamic pricing model which is aligned with raw material cost movements and market demand. We do not operate on long term fixed pricing contracts.
सब्जेक्ट टू प्राइस रिविजन्स हम लोग करते हैं जब मेजर वेरिएशंस रॉ मटेरियल प्राइसेस में होते हैं, विच अलाउज अस टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन्स। ओके, नहीं ठीक है सर। सर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज करते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। रॉ मटेरियल बेसिक हमारे दो तरह के रॉ मटेरियल्स हैं। एक तो पेपर्स में क्राफ्ट पेपर्स एंड डेकोरेटिव पेपर्स। ओके। मतलब लैमिनेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर एंड केमिकल्स। पेपर में ओके। लगते हैं, पेपर में क्राफ्ट पेपर, देन डेकोरेटिव पेपर, एंड केमिकल्स में मेजरली इट इज फिनॉल बेस्ड हाँ। and phenol, melamine, and like it's a glue we mix with ओके। this. अच्छा, मनोज जी एक बात बताइए, ये जो लैमिनेट का बिजनेस है, ये बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग है, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। खरीदार जब आता है, बी टू बी डिस्ट्रीब्यूटर हो के फाइनली वो कस्टमर के पास जाता है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द डिजाइन एस्पेक्ट इन आवर प्रोडक्ट? Actually, we have kept a team at our company जो कि like regularly research करती रहती है ये। एंड हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि 1 mm है, 0.8 mm प्रीमियम लैमिनेट है, अदर लैमिनेट्स है, वो हम लोग हर 6 महीने 8 महीने में इसको रिव्यू करते हैं डिज़ाइंस। सारे जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके साथ बैठते हैं, जो नई लाइक डिज़ाइन ट्रेंड है उसको निकालते हैं, हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं अपने फोल्डर्स में हाँ। एवरी 15-16 मंथ्स। ओके, अच्छी बात है। मनोज जी, नाउ टेल मी वन थिंग, एक बात बताइए सर, ओवरऑल हमारे लिए मार्केट साइज कितना बड़ा है? क्योंकि ऑब्वियसली लैमिनेट्स तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट साइज इंडिया में बड़ी है। तो सर अगले 3-5 साल में आपको क्या लगता है कितना बड़ा मार्केट है लैमिनेट्स का, और हम उसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे? हम लोगों ने अभी एक रिव्यू लिया था, लाइक एक रिसर्च एनालिस्ट से, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। उन्होंने उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कि हमारा ये जो लैमिनेट इंडस्ट्री है वो 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री है यूजुअली। एंड जो हमारे टॉप बेसिकली जो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड जिनकी लाइक कैपेसिटीज़ है, दे आर ओनली 25% ऑफ द टोटल 22,000 करोड़ की। तो देयर कैन बी अ लॉन्ग वे टू गो टू फॉर एनी कंपनी लाइक। अच्छा, बेसिकली रनवे बड़ा है हमारे लिए अभी भी बहुत मार्केट बड़ा शेयर है, करने के लिए। बहुत ठीक है, बड़ा है। अच्छी बात है। सर दूसरी बात, मैं प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहा था, आप हमको बताइए सर, मोटा मोटी हमारा जो ऑलमोस्ट 58-59% रेवेन्यू आता है वो 10 कस्टमर से आता है। तो सर राइट। ये आगे चल के पब्लिक इशू होने के बाद सर ये क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? जैसे हमारे आज के दिन 50+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जो पॉलिसीज़ रहती है कि लाइक जो भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स वी सपोर्ट देम, ठीक है। एंड वी ऑलवेज सपोर्ट देम। एंड हम लोगों का क्या है कि लाइक सपोज कोई डिस्ट्रीब्यूटर यदि ऐसा है कि जो परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो हम लोग रिव्यू करते हैं, कोई यदि परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वी रिव्यू इट एंड लाइक सी ठीक है, अगेन। समझ गए। सर मोटा मोटी हमारे धंधे में क्या ऑर्डर बुक के हिसाब से काम होता है या रोलिंग ऑर्डर्स आते हैं? जरा इसके बारे में बताइए। नहीं, हमारे ऑर्डर बुक वाले सिस्टम चीज़ें नहीं है। हम लोग लार्जली ऑपरेट करते हैं रेडी स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल रखते हैं फैक्ट्री पे, प्लस सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग रिव्यू करते रहते हैं, हाँ। rather than long-term order book contracts. ओके। Revenue visibility comes from rolling distributor orders and repeat business from institutional buyers, and हाँ। this model provides steady operational continuity rather than dependence on large single projects. सर एक बात बताइए कि रिपीट बिजनेस हमारे लिए कितना होगा हमारे रेवेन्यू में? It is almost 70 to 75%। जैसे सेट की ना कि हमारे कस्टमर सेट हैं, एंड हम हाँ। लोग रिव्यू करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारी ऑलरेडी सेल्स टीम उनके साथ रहती है, तो वो रेगुलरली वर्क करती रहती है, एंड वी नहीं, वांट कि अच्छी जो बात है पीलर सर। स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करें। अच्छी बात है सर, क्योंकि अगर आपका रिपीट बिजनेस इतना ज्यादा है तो उसका मतलब प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी बहुत बढ़िया ऑब्वियस। होगी। वेरी राइट। गुड। सर अभी बताइए कि हम अगर इस बिजनेस में इतने लंबे समय से है, तो एज अ प्रमोटर यू हैव स्टार्टेड द कंपनी, सर आप इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हो। सर हमको राइट। बताइए कि रिपीट बिजनेस भी ज्यादा है, आपने जैसे कहा सर, ऐसी क्या वजह है, या क्या अलग काम आप करते हो कि कस्टमर हमारे पास रेगुलरली आता है, रिपीट बिजनेस भी देता है? 2-3 चीजें हमको बताइए क्वालिटेटिवली कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन, क्योंकि देखिए हर बिजनेस पे कंपटीशन तो होता है।
तो हमारा काम क्यों बेहतर है सर? 2-3 चीजें आप बताइए। जिससे हम लोग जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एक तो ऑपरेशनल एजिलिटी है, स्ट्रॉन्ग मिड साइज फोकस है, बैलेंस प्रीमियम एंड वैल्यू पोर्टफोलियोज हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग है, और हम लोगों ने अभी जो नई चीज़ें चालू की है दैट इज एक्सपीरियंस सेंटर। हाँ। ये इसके ऊपर लाइक लाइक वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम अदर पीयर ग्रुप्स। ओके सर, आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे जो हम आपकी कंपनी को कंपेयर करें? लाइक आप मान लीजिए रुसील डेकोर है, आर्चिड प्लाई है, ओके। ये दो ठीक है। मेजर। ठीक है, समझ गया। अच्छा सर, अभी आपने एक्सपीरियंस सेंटर्स की बात की, सर कितने एक्सपीरियंस सेंटर्स हमारी कंपनी के होंगे? कंपनी ओन्ड लाइक 3 है अभी एक्सपीरियंस सेंटर हमारे पास। ओके। और ये कहाँ एंड कहाँ लोकेटेड है सर? ये चेन्नई है, बैंगलोर है, दिल्ली है। सर एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ सर, आप बताइए। सर हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा है कि एक्सपीरियंस सेंटर्स एक्चुअली इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बेसिकली लिस्टेड एंटिटी ओन नहीं करती, तो इसकी कोई खास वजह है ऐसा किया है? नहीं, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान किया था इनिशियली, एंड दिस एक्सपीरियंस सेंटर्स आर करंटली ऑपरेटेड अंडर द प्रमोटर आइडेंटिटी, क्योंकि प्रमोटर लाइक कॉर्पोरेट अलग आइडेंटिटी है, उसके नाम से ही है, मनीलैम रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। फॉर प्राइमरली फॉर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी के कारण हम लोगों ने किया था। ओके। And all transactions between the listed company and like promoter entities are conducted strictly at arm's length price and fully disclosed as RPTs, और related सर party। मोटा मोटी एक एक्सपीरियंस सेंटर के लिए कितना खर्चा होता है आपको सेटअप करने के लिए? Set up more or less 30 to 40 lakhs of rupees, and there is a regular expenditure of 2 to 3 lakhs per month. अच्छा सर, इसमें एक बात बताइए कि मैं जानना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स भी जानना चाहेंगे कि आपकी Right. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सेटअप किया है, बहुत बढ़िया। बट सर Hmm. आपको कोई लिस्टेड कंपनी को या आपको प्रमोटर को कोई रॉयल्टी मिलती है फॉर दिस एफर्ट विच यू पुट इन? We have made the fixed arrangements, and the company has entered into formal non-compete agreement also. बट ऐसा इसका कुछ मतलब सर प्रमोटर पैसा खर्चा करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन रिटर्न डज द प्रमोटर गेट एनी रॉयल्टी ऑन द सेल्स व्हिच कम, और मे बी एनी काइंड ऑफ पे बैक जो प्रमोटर को मिलता है, वो मैं पूछना चाहता था। प्रमोटर मीन्स जिनके एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं इनके। हाँ बिल्कुल सर, आपने सेटअप किया, मान के चलो प्रमोटर ने सेटअप किया, धंधा वी बढ़ गया, reimburse we reimburse the expenditure, we reimburse the total अच्छा expenditure। एक्सपेंडिचर जो लगता है उसको चलाने के लिए वो आप रियम्बर्स करते हैं। राइट। ठीक है, समझ गए। सर अभी बताइए कि बेसिकली क्या है ना कि आपका फाइनेंशियल्स में देख रहा था, काफी अच्छे नंबर्स है सर। 140 करोड़ का रेवेन्यू, और सर मुनाफा आपका 7.37 करोड़ है, जो पिछले साल 3.13 करोड़। सर पहली बात तो बताइए सर, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया, लेकिन रेवेन्यू मोर और लेस फ्लैट है, तो सर प्रॉफिट बढ़ने की वजह क्या होगी? एक्चुअली द मेन रीजन क्या है कि लाइक व्हाइल रेवेन्यूज रिमेन्ड स्टेबल ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव जैसा कि आपने बोला, बिकॉज कि हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया है। वी वर डीलिंग विद बेसिक लैमिनेट एंड प्रीमियम लैमिनेट। इन लास्ट 3 years हम लोगों ने ओके। क्या किया है, बेसिक लैमिनेट के परसेंटेजेस को कम किया है एंड प्रीमियम लैमिनेट्स के परसेंटेज को बढ़ाया है लास्ट 3 years। अच्छा। In spite of stable year on year like revenues, our profitability has been increased due to gross margin ओके differentiation। सर, मनोज जी एक छोटा सा और सवाल है, अभी तो हम फरवरी में है, सो यू विल अप्रिशिएट सर, मोटा मोटी दिसंबर तक आप हमको कुछ हेल्प कर सकते हो, कितना रेवेन्यू हो गया है, प्रॉफिट कितना हो गया, बिकॉज ये नंबर्स पूरा काफी पुराने हैं, 5/25 के, अभी तो हम Okay। 26 में आ चुके हैं, तो मोटा मोटी कुछ आप हमको हेल्प कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू दिसंबर तक हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? सितंबर तक इट इज अंडर, हम लोगों ने जो आरएचपी वगैरह में दिया इट इज अराउंड 60 करोड़, ओके। एंड जो पैट है इट इज अराउंड 4 करोड़, 3 to 4 करोड़ के अराउंड है। और एंड सर विदाउट पुटिंग नंबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपको क्या लगता है, सितंबर तक तो आपने नंबर दिए हैं, बट अगले 6 महीने में, यानी मार्च अभी हो जाएगा, सर आपको क्या लगता है ये साल भी पिछले साल की तरह अच्छा होना चाहिए हमारे लिए? जरूर बेटर होगा। एक्चुअली क्या है कि इनिशियली फर्स्ट 6 months में अप टू सितंबर बारिश के मौसम होते हैं, काफ़ी सारे फेस्टिव्स होते हैं, तो वो हम लोगों के लिए डल मौसम रहता है, हाँ। उसमें हम लोगों की डिमांड कम होती है। हाँ। वंस वी क्रॉस फेस्टिव सीजन, देन हम लोगों की डिमांड एंड सारी चीज़ें बेटर होती है। तो ओके। सेकेंड हाफ इज ऑलवेज बेटर इन आवर बिजनेस।
समझ गया। तो बेसिकली सेकंड हाफ में ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर आता है, ठीक है, एग्जैक्टली समझ एग्जैक्टली। गया। अच्छा मनोज जी, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है सर, कंपनी पब्लिक इशू के बाद पब्लिक राइट लिमिटेड कंपनी बनेगी। सर हम राइट। लोग मार्केट से कितना पैसा उठाने वाले हैं और किस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव, यानी कहाँ पे पैसा खर्चा होगा? हम लोग टोटल अराउंड 40 crores वी आर रेजिंग फ्रॉम दिस IPO. Majority of the amount is going for the working capital requirements because it's a capital intensive industry. हम्म। Because हमारे SKUs इतने हाई हैं, इसमें रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 3.5 करोड़ रुपए है आउट ऑफ टोटल 40 crores. सोलर रूफिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं 2.2 करोड़ का, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी 1.25 करोड़ रुपए का वो है। रिमेनिंग बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, एंड OFS का एक छोटा अमाउंट है विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 crores of rupees. ओके, ठीक है, तो बेसिकली ओएफएस भी है पब्लिक इशू के साथ, ठीक थोड़ा है। सा है। मनोज जी, अभी बताइए कि सर नॉर्मली अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मोटा मोटी सर वर्किंग कैपिटल कितना लंबा होता है हमारे लिए? बाय द टाइम आप डीलर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, फिर बाद में वो आपको पैसा देता है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे लिए इन्वेंट्री और डेटर्स को मिला के सर कितनी लंबी होती है? ये हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल अराउंड 150 days अराउंड रहती है, ओके। बिकॉज नंबर ऑफ SKUs इतने ज़्यादा हैं, एंड चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पैन इंडिया इतना बेसिक ज़्यादा है, तो हम लोगों को स्टॉक्स हर जगह मेंटेन करवा करके देना पड़ता है, एंड इट इज़ समझ एन गया। इंडस्ट्री नॉर्म, इट इज़ एन इंडस्ट्री नॉर्म, वो उतना रहता है। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, समझ गया, आई थिंक दैट इज ओके। अच्छा राइट। मनोज जी, एक बात बताइए, हमने आपके प्रोस्पेक्टस में देखा है कि आपकी ना दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां है, बेसिकली मैं नाम बताता हूँ आपको। बेसिकली एक तो मनी प्लाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, फिर गणपति प्लाईबोर्ड्स है। सर ये कंपनीज का आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये कंपनीज भी वही प्रोडक्ट बेचती थी, बट आगे पब्लिक इशू के बाद मैनेजमेंट क्या करना चाहते हैं? सारी बिजनेस लिस्टेड कंपनी में आएगी? At this stage, I am unable to say anything, but like क्या है कि the company has entered into formal non-compete agreement. ये जो भी बिजनेस मनीलाम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कर रही है, वो कोई भी बिजनेस वो नहीं करेगी। एज यू सेड कि मनी प्लाई इंडस्ट्रीज एंड गणपति प्लाईबोर्ड्स, आज के दिन इसमें ऐसा कोई बिजनेस है नहीं कोई। अच्छा, ठीक है, समझ गया। सर दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, हम देख रहे थे कि सर जो ब्रांड्स है हमारे, अभी आपने जो ब्रांड बोला सर, वो ब्रांड्स भी मुझे लगता है कंपनी के नाम पे नहीं है, ये एक्चुअली दूसरे एंटिटी यानी प्राइवेट लिमिटेड में है। तो ये ब्रांड आप ट्रांसफर करना चाहते हो कभी आगे इन द नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी? As far as brand ownership is concerned, the current management is legally structured. Any brand uses by the listed entities appropriately documented. There is no material royalties there, burden on हाँ। affecting profitability, and future restructuring or consolidation of brand ownership, if considered or if required, will be evaluated in the best interest of the public shareholder and in full compliance with the regulatory norms. तो ये बात हम मान के चले मनोज जी की कुछ भी रॉयल्टी ब्रांड के लिए मिलती नहीं है, लिस्टेड कंपनी डजंट हैव टू पे एनी मनी फॉर द ब्रांड, राइट? Yeah, right. अच्छा मनोज जी, अभी एक बात बताइए, अभी तो आपकी टीम काफी बड़ी होगी, आप तो प्रमोटर है सर, फंक्शनली आपका रोल कंपनी में क्या है? नया बिजनेस लाना, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को नर्चर करना, आपका फंक्शनल रोल कंपनी में क्या है वो बताइए। मैं फाइनेंस एंड ओवरऑल पूरी की पूरी लाइक कंपनी को ओवरव्यू करता हूँ, सारे के सारे जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स एरिया लाइक जो वैकेंट है उसको डेवलप करते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिव्यू मीटिंग होती है, सारे सेल्स टीम के साथ में रिव्यू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक वी हैव स्टार्टेड दिस प्लाईवुड बिजनेस आल्सो व्हिच वी हैव हाँ। स्टार्टेड इन ट्रेडिंग सिंस ब्रांड हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वी आर लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज आल्सो। अच्छा, और सर दूसरी बात बताइए कि आपके साथ जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज वापस बताइए, कितने एम्प्लॉयज हमारे होंगे सर? It is around, you're talking about the as a whole, including staff पूरा and पूरा labor. कंपनी सर, पूरी पूरी लिस्टेड कंपनी जो अभी पब्लिक इशू कर रही है सर, उसका एम्प्लॉय बेस कितना है? It is around 150 के अराउंड है। ओके, ठीक है, तो 150 150, लोगों है, ठीक है। 150 लोगों की पूरी है। ठीक है। सर आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं सर, हमारे धंधे में ना सबसे बड़ा रिस्क है, कोविड तो बहुत बड़ा इवेंट था, बट अगर हम नॉर्मल बिजनेस रिस्क देखें तो सर हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट रिस्क है? वेदर इंडस्ट्री रिलेटेड रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, खर्चे बढ़ जाते हैं सर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जब आप सुबह ऑफिस को आते हो तो सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या आपके टॉप मोस्ट आपके माइंड में होता है, वो बताइए? हमारे धंधे में जो प्राइमरली रिस्क है दैट इज़ रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी की रहती है, पर्टिकुलरली फिनॉल एंड डेकोरेटिव पेपर जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बट आने वाले समय में क्या है कि लाइक जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक दीपक फिनोलिक है, लाइक हाँ, और भी लाइक एक दो कंपनी आ रही है कैलकाटा में भी। हाँ, हो सकता है कि ये चीज़ें मिटिगेट हो जाए बाय इन फ्यूचर, बट दैट इज़ रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन इज़ द मेन इश्यूज, जो कि हम लोग मिटिगेट करते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग एंड इन्वेंट्री साइकिल को ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स जो कि हमारी प्रोटेक्ट करती है मार्जिन को। ओके। नहीं, ठीक है। आई थिंक मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को। आई थिंक अच्छी जानकारी आपके साइड से मिली। सो सर, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस टू यू, आपकी मैनेजमेंट टीम को भी। और सर, पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।